اس کی چار اس کا دم نکل جاتا ہے اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا وہ ہے مٹی میں مل جاتا ہے. اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے. اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو اسی جاتے دن اس کے ہیں. منصوبے فنا ہو جاتے ہیں. آمین. آمین. اس کا دم نکل جاتا اور وہ مٹی میں مل جاتا اور اس کے منصوبے سب فنا ہو جاتے ہیں. خدا اس مٹی کو اس خاک کو یہ سکھا رہا ہے کہ آدم غور کر کہ تو کہاں سے لیا گیا، کیونکہ تیرا دم نکال دیا جائے گا اور تو مٹی میں مل جائے گا اور تیرے سب منصوبے فنا ہو جائیں گے. تو نے جو شہرت کے لیے، عزت کے لیے، بڑائی کے لیے، خدا کی مانند بننے کے لیے جو کھایا تو مٹی میں چلا جائے گا اور تیرے سب منصوبے فنا ہو جائیں گے. آج ہم جتنے منصوبے اپنے اندر رکھتے ہیں، اگر زبور کی کتاب میں لکھا ہے، زبور 127 میں، اگر خدا ہی نہ چاہے تو گھر نہیں بنتا، کیونکہ خدا ہی ہے جو گھر بناتا ہے. خدا ہی ہے جو اصولات دیتا ہے، خدا ہی ہے جو عزت دیتا ہے، خدا ہی ہے جو دولت دیتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں اس قابل اور لائق کرتا ہے. کہتا ہے کہ جس دن اس کا دم نکل جائے گا، وہ دم جو باغ عدن کے اندر پھونکا گیا تو انسان زندہ جان ہوا، وہ زندہ ہو گیا. جب وہ دم نکل جائے گا تو انسان پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی مٹی جو باغ عدن کے اندر تھی اور اس کے سب منصوبے فنا ہو جائیں گے. ہم نے اپنی زندگیوں پہ، اپنی حالتوں پہ غور کر، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. دیکھا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے بیٹے کو بخش دیا کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی. ہم ایمان لاتے ہیں، ہاللیلویہ. جب ایمان لاتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح وہ شخص ہے کہ جو موت میں بلکہ پتال میں اور پتال کے عالم رواں میں بھی چلا گیا تو وہ بھی اسے رکھ نہ سکے. وہ بھی اسے رکھ پتال میں اور پتال کے اندر عالم رواں میں چلا گیا تو وہ بھی اسے نہ رکھ سکی، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا اور کلمہ تھا. اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو اگر ہم مر بھی جائیں گے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ عالم رواں بھی تجھ پہ غالب نہ آئے گا. یعنی کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ تم میرے حکموں پہ رہو گے، حکموں پہ چلو گے تو عالم رواں بھی تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. جس دن تیرا دم نکل جائے گا اور تو مٹی میں مل جائے گا. دم تو نکلنا ہے آخر، چاہے میں 100 سال گزار کے چلا جاؤں، 200 سال گزار کے چلا جاؤں، دم تو نکلے گا اور میرے سب منصوبے جو زمین پہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو کیوں نہیں جس بات کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، جس بات کے لیے اب تک مجھے زندہ رکھا ہے، وہ کیوں نہ کروں؟ خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے خدا نے انسان کو؟ اس کی حمد کرے. کیا صرف حمد ضرورت کے لیے؟ جب 2 گھنٹے کی، جب چند لمحات کی، کلام کہہ رہا ہے خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی کیا کرے؟ حمد کرے، عبادت کرے، اس کی پرستش کرے. اس لیے نہیں کہ گناہ کے لیے، نافرمانی کے لیے،
फेरी के लिए, बदगुमानी के लिए, मखालफत के लिए, बल्कि इसलिए पैदा किया कि वो खुदा की क्या करे, हम्द करे। जब वो खुदा की हम्द करेगा तो खुदा के हजूर से तेरे फुरकार लेगा। जब हम बनी इसराइल कौम को देखते हैं तो बनी इसराइल कौम का एक हिस्सा बड़ा जबरदस्त लगता है हमें। ठीक है, जब खुदा के खादम मूसा को खुदा ने भेजा कि जा तू जाके मेरी कौम को छुड़ा के लेके आ, तो जब वो फिरौन के सामने जाता है तो फिरौन कहता है कौन खुदा है, तो किस खुदा की बात करता है। तो जब फिरौन के सामने जाता है तो कहता है मेरे खुदा ने, जो मेरे बाप दादा का खुदा है, उसने मुझे भेजा है कि तू उसकी कौम को लेके बियाबान में 3 दिन के लिए किस काम के लिए जा, हराम कारी करने के लिए, सिर्फ इबादत करने के लिए। कह रहा मेरे खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि तू मेरी कौम को बियाबान में ले जा 3 दिन के लिए और उनसे क्या करवा, इबादत करवा। फिरौन मान जाता है, कहता है चले जाओ। फिर मूसा जाता है, कहता नहीं, मेरे खुदा कहता है 7 बीवियां और बच्चे भी लेके जाओ। कहता है नहीं, अगर मर्दों ने जाना है तो जाओ, लेकिन बीवियां बच्चे नहीं लेके जाना। आज इब्लीस रोकता है इबादत से भी। एक आ जाता है, 4 नहीं आते, क्योंकि खुदा नहीं रोकता इबादत से, बल्कि इब्लीस रोकता है इबादत से। उसे पता है जब हम कलाम को सुनेंगे, उसकी प्रस्तिश को करेंगे, तो खुदा अपनी ढेरों बरकत और जरूर उसका अहद और वादे के साथ जो जिंदगी रखी है वो देगा। फिर मूसा तीसरी दफा जाता है, कहता मेरा खुदा कहता है सिर्फ बीवी बच्चों को नहीं बल्कि माल बेशों को भी लेके जा। वहां जानवरों का क्या जरूरत थी, लेकिन खुदा नहीं चाहता था कि जो मेरी कौम है, जिनको मैंने खालिक किया है, वो गुलामी में, गुनाह में रहें, वो इब्लीस में रहें, बल्कि वो आजाद किए जाएं और मेरी इबादत करने के लिए, मेरी हमद सना करने के लिए, मेरी सताइश, मेरी प्रस्तिश करने के लिए जाएं। वो सब चीजें लेके जाएं। इसलिए कहता है कि जिस दिन तेरा दम निकल जाएगा और तेरे मंसूबे सब फना हो जाएंगे। आज हमारा दम निकलने की जरूरत है। हम यहाँ बड़ी हमदोसना, बड़ी प्रस्तिश, बड़ा कलाम बयान कर रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ अगर अभी मेरी डेथ हो जाए, अभी कल सुबह तक मुझे दफना दिया जाएगा, कब्र में रख दिया जाएगा। कल शाम भी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे कल शाम भी, दफना तो इसे। तो क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारा मकाम है? सिर्फ खुदावन में जिंदगी और मकाम है, वो जो इज्जत बख्शता है। हालेलुया। हमारे सब इरादे, मंसूबे कुछ भी नहीं, हमारे सब प्लान कुछ भी नहीं, हमारी सारी ताकत और कुव्वत कुछ भी नहीं। ये सब कुछ हमारे खुदा की तरफ से है, सब कुछ हमारे खुदा का है। वो हमें इस काबिल और लायक करता है। इसलिए कहता है आदम से, क्योंकि तू खाक में से लिया गया और खाक में लौट जाएगा। यहाँ कह रहा कि इंसान का जब दम निकलता है तो उसके सब मंसूबे, क्योंकि वो कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में। और मिट्टी का कोई भी मंसूबा, क्योंकि मिट्टी का मंसूबा तब बना जब खुदावन ने मिट्टी को लिया और मिट्टी को इंसान बनाया, और जो इंसान बना के उसमें दम फूका और उस दम निकला और उस दम से वो जिंदा हुआ, तो खुदा ने उसे मंसूबे भी दे दिए कि तू पागे आदम में रहे और बाग की निगहबानी और हिफाजत कर और इसका हर फल खा, और समंदर की भी सब चीजें तेरी हैं।
ये भी मंसूबे किसने दिए? खुदा ने। लेकिन आज जो मंसूबे हम बनाए हैं वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से है। इसलिए हम खुदा को पसंद नहीं आ रहे। हमें जी बेटा इसकी 5 मिनट खुश नसीब है वो गौर करना है। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। जिसका मददगार याकूब का खुदा। खुश नसीब कौन शख्स है? वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है, जो याकूब के खुदा पे तवक्कुल करता है, भरोसा रखता है, उसकी मदद आती है खुदावंद खुदा से। वो मुबारक शख्स है, वो रासबाज है, वो नेक है, वो खुदा परस्त है। क्योंकि इसलिए मुबारक है क्योंकि वो खुदावंद पे भरोसा रखता है। वो अपनी अक्ल पे नहीं, अपनी सोच पे, अपनी ताकत पे नहीं, क्योंकि वो मिट्टी है, मिट्टी मिल जाती है उसके मंसूबे। वो मुबारक कौन है? वो जो याकूब के खुदा पे क्या करता है? भरोसा रखता है। आज हमारे लिए निशान है वो खुदावन यीशु मसीह है, जो भेज दिया गया, हमारे लिए दे दिया गया। अगर हम ईमान रखते हैं तो फिर भी हमेशा की जिंदगी नहीं पाते, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे आदम के लिए था, खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ मिट्टी को बनाया, बड़ी इज्जत दी, अपने साथ रफ़ाकत दी, खाना पीना दिया, बैठना दिया, इज्जत दी, मकान दिया, सब चीजों में हुक्मरान कर दिया, घर का मुख्तार कर दिया। लेकिन उसके जो अपने मंसूबे थे बड़े होने के, खुदा जैसे बनने के, बड़ी दौलतमंद होने के लिए, बड़ी शोहरत पाने के लिए, वो सब फना हो गए और वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन जब यीशु मसीह आया, जब बेटा खलमा आया, उसके सब मंसूबे खुदा की तरफ से थे, उसके सब बने खुदा की तरफ से, क्योंकि वो खुदावन पे ईमान रखता था, वो खुदा के हुक्मों पे मोहब्बत करता था, वो खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता था। वो याकूब के खुदा के ऊपर भरोसा रखता था, इसलिए उसने कब्र से भी उसे निकाल दिया और उसे वो मकाम बख्शा जो सब नामों से, हालेलुया, उसे भी नाम दिया, उसे भी शोहरत दी। वो भी बिन माँ बिन बाप पैदा हुए और ये बिन बाप पैदा हुआ। वो बिन माँ बिन बाप पैदा हुआ आदम, और ये बिन बाप पैदा हुआ, और ये ज्यादा सबका ले गया, ज्यादा इज्जत ले गया, ज्यादा मकाम ले गया। आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम किस में पैदा हो रहे हैं? मसीह यीशु में। हम खुदावन में पैदा हो रहे हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदावन में पैदा हो जाते हैं। जब उसमें पैदा होते हैं तो हमारे मंसूबे नहीं बल्कि खुदा की रजा, तो मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। हमने सिर्फ अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करना है और खुदा के मुताबिक करना है। नेमते बरते खुदा की हमारे लिए है। हालेलुया। मुबारक है वो शख्स जो याकूब के खुदा पे क्या करता है? भरोसा रखता है। मुबारक ठहरना है तो खुदा पे भरोसा रखने की जरूरत है। मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, गरीबी आ जाए, बेबसी आ जाए, बीमारी आ जाए, लाचारी आ जाए, तो भरोसा रखे खुदावंद खुदा पे कि जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो कह रहा है क्या इंसान तू मिट्टी है और तेरे सब मंसूबे बना है। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो याकूब के खुदा पे भरोसा रखता है। हमने किस पे रखना है? खुदावन खुदा पे भरोसा रखना है। जब हम खुदा पे भरोसा रखेंगे तो हमारे लिए अच्छी नेमतें बरकत करेगा। आमीन। खुदावा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।
صرف